Hello guys, welcome to this new video series of information technology, which is a subject for 12th standard HSC, and mostly it is useful for both commerce and science students. And this video series is completely based on the syllabus of Maharashtra State Board. So we have already completed our first chapter, that is advanced web designing, and I got very good response from your side. And some students also requested me to conduct my lectures in Hindi as well as in English. So I will start this new video series in both the languages. And guys, if you like my videos, then subscribe my channel and press on the bell button so that when we upload our videos, then you will get a notification. So from today we are going to start new chapters. This is chapter number 2, search engine optimization. We know or we learn that how we can design a web page or website using HTML. Okay, in 11th standard and some part we have already studied in the 12th standard. So it is very easy to design a website, but it is a toughmost part comes when we want to promote this website on internet or you want to publish it is on internet. You have to get a maximum reach or have to get a maximum traffic on your website is a very important and very toughmost part in website development. So this series is a very useful for IT students as well as IT teachers. And it is also very useful for the IT professionals who are going to design a website or who want to make their career in website development. Now here I am going to share you a screen or a PowerPoint presentation in which search engine related terms are given. First of all, we will study those terms, then we will go to study what is the search engine optimization, because the basic concept you have to study first, then we will go on the advanced part. So let us start. This is our chapter 2, search engine optimization, but here we are going to study first what is a search engine. The definition of search engine says that it is a software system that is designed to carry out internet search, which means to search the World Wide Web in a systematic way for particular information specified in a textual form known as query. Then what are the examples, sir? Google, Yahoo search, Bing, MSN search. These are the search engine which we are using in a market. अब हम समझ लेते हैं कि what is the search engine? सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटरनेट पे अपलोड किया हुआ रहता है, इंटरनेट पे ऑन रहता है. ओके, इस इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट के फॉर्म में स्टोर की रहती है. यानी जो भी डेटा हमें इंटरनेट पे स्टोर करना है वो वेबसाइट के मीडियम से हम सेव करते हैं. अगर कोई इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे चाहिए तो आपको वो सर्च करनी पड़ती है, आपको कंटेंट सर्च करना पड़ता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो वो कंटेंट सर्च करने के लिए आपको कई क्वेरीज यूज करने होते हैं या कोई फ्रेजेस यूज करने होते हैं जिनको कहा जाता है कीवर्ड्स. तो कीवर्ड का इस्तेमाल करके या कीवर्ड का यूज करके आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे चाहिए वो सर्च कर सकते हैं. और वो सर्चिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटरनेट पे अवेलेबल है उसे कहा जाता है सर्च इंजन. तो बहुत सारे सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल है जो इंटरनेट पे ऑन रहते हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग है, एमएसएन है. ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन आज मार्केट में अवेलेबल है. लेकिन हम अभी ज्यादातर लोग यूज करते हैं गूगल, क्योंकि सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे बेस्ट इंटरफेस है. और अब मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स गूगल के या गूगल कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. तो आज इतना क्लोज रिलेशन हो चुका है गूगल और सर्च इंजन के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सर्च इंजन क्या होता है. सर्च इंजन एक
ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये कीवर्ड क्या होता है। हम लोग ने अभी जो सर्च इंजन का डेफिनेशन स्टडी किया, देयर वी हैव सी द कीवर्ड। कीवर्ड मीन्स क्या होता है, क्या होता है ये कीवर्ड, कैसे यूज होता है, किससे बनता है कीवर्ड, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। So the keyword is a search query. What it is a set of words or phrases in content of your website that make it possible for people to find your site via search engine. तो ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आपके वेबसाइट में जो आपने कंटेंट लिखा रहेगा, उस कंटेंट में कोई फ्रेजेस या कोई सेट ऑफ वर्ड्स हम कलेक्ट करते हैं और वो सेट ऑफ वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को कहा जाता है कीवर्ड। इन कीवर्ड का यूज करके वी आर सर्चिंग वेबसाइट और वी आर सर्चिंग एनी कंटेंट ऑन वेबसाइट। कीवर्ड कैसे होते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने 3 कीवर्ड्स दिए हुए, वेब डेवलपर इन मुंबई। अगर मुझे सर्च करना है, इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स रहेंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स मुंबई में जितने भी वेब डेवलपर हैं उन्होंने किए रहेंगे। मुझे अगर सर्च करना है कि कौन कौन से वेब डेवलपर आज मुंबई में है, तो मैं सर्च करूंगा वेब डेवलपर इन मुंबई इस कीवर्ड से। अगर मुझे आईटी कोर्सेज स्टडी करने हैं तो आईटी कोर्सेज जितने भी मुंबई में है वो अगर कोर्स स्टडी करने हैं तो मैं सर्च करूंगा आईटी कोर्सेज। लेकिन मुझे मुंबई में नहीं, सारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट आईटी कोर्सेज रिलेटेड है वो अगर मुझे सर्च करना है तो आई विल यूज आईटी कोर्सेज एज अ कीवर्ड। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, डिजिटल मार्केटिंग जितने भी प्रोफेशनल्स है उनसे मुझे कांटेक्ट करना है, वो मुझे उनका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। तो ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट से चाहिए, जो इंटरनेट पे चाहिए, वो इंफॉर्मेशन अगर हमें सर्च करने है तो हमें कीवर्ड्स का यूज करना होता है, कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। जो कीवर्ड्स सेट ऑफ वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स 1-2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स या 3 से ज्यादा वर्ड्स इकट्ठा करके हम लोग एक सेट बनाते हैं जिसे कहा जाता है कीवर्ड। ओके, ये क्वेरी भी हो सकती है, जैसे कि हाउ टू स्टडी डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अगर मुझे जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टडी करना है तो मैं गूगल पे या कोई सर्च इंजन पे जाके सर्च करूंगा हाउ टू स्टडी डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टडी करने के लिए जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे रहेगा वो कंटेंट मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, तो कीवर्ड क्या होता है? एक सेट ऑफ वर्ड्स रहता है, फ्रेजेस रहते हैं, और जो फ्रेजेस अपने वेबसाइट पे होने होते हैं। अगर वेबसाइट पे वो कंटेंट, आपके कंटेंट में वो फ्रेज या कीवर्ड नहीं रहेगा तो वो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखती। ओके, वो पार्ट हम लोग आगे स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग इतना समझ में लेते हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस इन कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट बाय यूजिंग व्हिच पीपल कैन सर्च द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट और सर्च वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स 2 टाइप्स है। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स रहता है, दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रहता है। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या रहता है? When a keyword is made up of 3 words or less, then it is called short tail keywords. और long tail keywords क्या रहता है? Opposite. Made up more than 3 words, then it is called long tail keywords. Okay, जैसे कि आपने पहले एग्जांपल देखा वेब डेवलपर इन मुंबई, यहाँ पे 4 वर्ड्स यूज किए हुए। मैं अगर इस वेब डेवलपर इन मुंबई को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, बेस्ट वेब डेवलपर इन मुंबई, तो ये मोर देन 3 कीवर्ड्स, मोर देन 3 वर्ड्स हुआ, तो इसको कहा जाता है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। ओके, और ऊपर में शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज करता हूँ आईटी कोर्सेज। तो पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी जितने आईटी कोर्सेज चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस आईटी कोर्सेज में मिल जाएगी। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में डिफरेंस पहला ये होता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में 3 वर्ड से कम कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मोर देन 3 वर्ड्स आर यूज। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव, उसमें ज्यादा कंपटीशन रहता है।
जैसे कि आईटी कोर्स, अगर ये मैं एक कीवर्ड ले लूं तो इस आईटी कोर्स, इस कीवर्ड के लिए पूरे दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है वो वेबसाइट्स वर्कआउट करते रहते हैं कि आईटी कोर्स अगर किसी ने सर्च किया तो मेरी वेबसाइट हाई रैंक करके पहले दिखी। ओके, तो इस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को कंपटीशन ज्यादा रहता है, सो इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में ऐसा नहीं, तो वो लेस कॉम्पिटिटिव रहता है। द बेस्ट डेवलपर्स इन मुंबई, तो मैं सर्च करता हूं मुंबई रीजन में जितने भी वेब डेवलपर, बेस्ट वेब डेवलपर है, उनकी लिस्ट मुझे स्क्रीन पे दिखे, उनकी वेबसाइट मुझे स्क्रीन पे दिखे। तो मैंने क्या किया, वो सर्च स्पेसिफिक कर दिया, मुंबई के लिए स्पेसिफिक कर दिया। पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में जितने भी वेब डेवलपर है उनकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक मुंबई के रीजन की जितने भी वेब डेवलपर्स है मुंबई में उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने उस सर्चिंग को स्पेसिफिक सर्च में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या करता है, एक स्पेसिफिक सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो लेस कॉम्पिटिटिव रहता है क्योंकि ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता। मुंबई बोला तो मुंबई में जितने भी लोग रहेंगे उनका कंपटीशन रहेगा। ओके, जो दिल्ली में बैठे हुए वेब डेवलपर उनका इससे लेना देना नहीं रहेगा क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखने वाली है। तो मुझे मुंबई की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेब डेवलपर से मुंबई में सर्च करने वाला हूँ, तो कंपटीशन लेस हो गया। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो वहां पे लेस कंपटीशन रहता है और हमारा सर्च भी स्पेसिफिक रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, वेब डेवलपर्स इंडिया HSC ट्यूटोरियल्स, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में है, और यहाँ पे HSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में है। यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में सिर्फ 2 या 1 कीवर्ड यूज किया है। मैं अगर इंडिया सर्च करता हूँ तो इंडिया रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स है मुझे सब दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मैं सर्च करता हूँ HSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स, जो ट्यूटोरियल्स सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जो ट्यूटोरियल्स सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वही उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसी से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स रहेंगे वो वेबसाइट्स में यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो आपको अभी समझ में आया रहेगा कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड में 2 टाइप्स रहते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स रहता है, दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रहता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 2 या 3 कीवर्ड्स, 2 या 3 वर्ड्स जिसमें रहते हैं वो कीवर्ड्स सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मोर देन 3 वर्ड्स रहेंगे तो वहां पे वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो लेस कॉम्पिटिटिव रहते हैं, वेरी स्पेसिफिक सर्च के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। ओके, हियर इज द SERP. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। SERP stands for search engine result pages. SERP are web pages served to users when they search for something online using a search engine such as Google, Bing, MSN, lots of search engines are there. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस यानी वेब पेजेस जो सर्चिंग के बाद दिखाई देती है। जैसे कि मैंने गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद वहां पे मैं इंसर्ट करता हूं वेब डेवलपर्स इन मुंबई, मैंने एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करता हूं स्क्रीन पे जो पेज दिखाई देगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, नंबर ऑफ पेजेस विल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। एक अगर इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, एक क्वेरी अगर आप सर्च करते हो तो नंबर ऑफ पेजेस विल ओपन ऑन स्क्रीन, बट पहले आपको पहला पेज दिखाई देगा, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस आपको बॉटम में दिखाई देंगे। अब जैसे ही क्लिक करते जाओगे आपको आगे के जितने भी पेजेस है वो दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जब आप एक कीवर्ड यूज करके सर्चिंग करते हो, सर्चिंग करने के बाद स्क्रीन पे जितने भी लिस्ट ऑफ वेबसाइट का पेजेस आपको दिखाई देता है उनको कहा जाता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। Okay, so users enter their search query often using specific terms and phrases known as keywords upon which the search engine present them with SERP.
तो यहाँ पे वही दिया हुआ कि जब आप कीवर्ड यूज करते हो, सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जो भी स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखाई देता है उस रिजल्ट को कहा जाता है SERP। और वो जो रिजल्ट दिखाई देता है वो नंबर ऑफ पेजेस में रहता है और एक पेज में नंबर ऑफ वेबसाइट्स के लिस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्प रहता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आपको वहां पे दिखाई देता है, वो दो कैटेगरी में दिखाई देता है, जैसे कि पेड सेक्शन और अनपेड सेक्शन। SERP में दो सेक्शन रहते हैं, एक पेड सेक्शन रहता है, एक अनपेड सेक्शन रहता है। ओके, जब आप कोई कीवर्ड से सर्च करते हो तो कीवर्ड से सर्च करने के बाद आपको एक जो सेक्शन रहता है जहां पे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है और कई सेक्शन ऐसे दिखते हैं जहां पे आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट आपको दिखाई देता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि पेड सेक्शन में अगर आप गूगल को या कोई सर्च इंजन को पे करते हैं और एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं, तब आपके वेबसाइट का जो पोजीशन रहेगा वो एक तो टॉप में रहेगा, बॉटम में रहेगा या साइड बार में रहेगा। ओके, एंड जब आप कोई पैसे आप देते नहीं हो गूगल को या कोई सर्च इंजन को, तब आप ऑर्गेनिक रिजल्ट में दिखाई देंगे। यानी ये जो सेक्शंस आपने पहले देखा, बीच में वाला सेक्शन, जो टॉप सेक्शन बॉटम सेक्शन के बीच में जो सेक्शन आपको दिखाई देता है जहां पे कोई एडी वगैरह नहीं दिखाई दिया, वो सब ऑर्गेनिक रिजल्ट है। और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको अगर लेने हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट में आपका वेबसाइट अगर आपको रैंक कराना है तो उसके लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। पेड सेक्शन तो पैसे दे दो और खेल देखो, जैसे ही आप गूगल को पैसे दोगे आपकी वेबसाइट आपको टॉप रैंक में दिखाई देगी। आपकी वेबसाइट अगर 7th या 8th पेज पे रहेगी या 10th पेज पे रहेगी, आप जैसे भी पैसे दोगे आपकी वेबसाइट 10th पेज से पहले पेज पे टॉप में आपको दिखाई देगी। लेकिन आपके अकाउंट में जैसे पैसे खत्म हो जाएंगे, जैसे गूगल के अकाउंट में आपने पैसे भरे हुए हैं, उस गूगल के अकाउंट में से पैसे खत्म हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट फिर से 10th पेज पे चली जाएगी। ओके, लेकिन अनपेड सेक्शन में ऐसा नहीं है। अनपेड सेक्शन में एक बार आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, आपकी वेबसाइट टॉप में दिखाई दी, पेज रैंक आपका हाई हो गया, उस पेज को और उस वेबसाइट का जो रैंक है वो रैंक जैसे ही आप SEO करते रहेंगे, जैसे ही आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते रहेंगे, आपका पेज रैंक हाई दिखाई देगा, आप उस पेज पे टॉप रैंक पे दिखाई देंगे। तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, यहां पे हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ सर्च इंजन। ये जो अपने सर्च इंजन पहले स्टडी किया है कि सर्च इंजन क्या होता है, तो एक सर्च इंजन का हिस्ट्री हम लोग अभी यहां पे स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट वेबसाइट इज क्रिएटेड इन 1991। ओके, जब मार्केट में वेबसाइट बनने शुरू हुआ तो वो 1991 में फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट हुई। एंड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट क्रिएटेड इन 1 ईयर, मींस 1992 जब आया तब थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स वेर क्रिएटेड। जब ये पहले वेबसाइट बनी थी, फर्स्ट वेबसाइट बनी थी, तो एक ही वेबसाइट थी। हम लोग को अगर वो वेबसाइट ओपन करनी है तो डायरेक्टली डोमेन नेम उसका एंटर करो, वेबसाइट ओपन हो गई। एक तो वेबसाइट थी, डोमेन नेम हम लोग को याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1992 में थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स आर क्रिएटेड, और वो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट का डोमेन नेम हम लोग याद करने लगे तो वो पॉसिबल ही नहीं था। हमें अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करनी थी तो हम लोग उस वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर करके वो वेबसाइट को ओपन करते थे, क्योंकि उस टाइम पे सर्च इंजन नहीं था। तो थाउजेंड ऑफ वेबसाइट में जो वेबसाइट हमें ओपन करनी थी वो वेबसाइट का डोमेन नेम याद रख के हम लोग को ओपन करना होता था। So what happened that time? No tools were available to access the content on website. तो कंटेंट ऑफ वेबसाइट सर्च करने के लिए ऐसा कोई टूल ही नहीं था। और उस टाइम पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस टाइम पे बनाया गया। उसमें क्या होता था कि टाइटल
जो हम लोग टाइटल टैग में टाइटल देते हैं और फाइल का नाम देते हैं, उस पे सर्च करके हम लोग सर्च कर पाते थे 1994 ईयर के टाइम पे। ओके 1994 3 और 4 में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डेवलप होने लगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ गए। उसमें क्या होता था, सिर्फ टाइटल सर्च किया करते थे और फाइल नेम सर्च किया होता था करते थे, वहां पे कंटेंट नहीं, वेबसाइट में क्या कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के हिसाब से तब सर्च इंजन वर्क नहीं करते थे। तो 1994 में पहला सर्च इंजन ऐसा आया जो याहू सर्च इंजन, जो अभी भी मार्केट में है। याहू सर्च इंजन पहला वहां पे मार्केट में आ गया 1994 में। और इन 1996 लैरी एंड सर्जरी इंट्रोड्यूस्ड न्यू सर्च इंजन विच इज नोन एज बैकरब। ओके, जब 1996 में लैरी और सर्जी ने एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बैकरब, और उस बैकरब को हम गूगल की नाम से पहचानते हैं। तो फर्स्ट गूगल जब मार्केट में आया, जब फर्स्ट गूगल इंट्रोड्यूस किया गया, तब उसका नाम गूगल नहीं था, उसका नाम था बैकरब। और वो कब आया मार्केट में? इन 1996। और आज जिस मार्केट में जिस सर्च इंजन ने बूम अप कर लिया है, वो गूगल का खेल जो शुरू हुआ वो 1996 के बाद। गूगल का सर्च इंजन टोटली बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स, बहुत तगड़े एल्गोरिदम्स उन्होंने बनाया अपने सर्च इंजन में, पूरा बेस्ड उनका एल्गोरिदम पे। जितना भी सर्चिंग होता है उनके एल्गोरिदम पे सर्च होता है। और ये जो एल्गोरिदम से एक ही एल्गोरिदम करके बैठे नहीं है, ये जो एल्गोरिदम से वो फ्रीक्वेंटली चेंज कराते हैं। पहले जो एल्गोरिदम उन्होंने बनाया उसका नाम था पांडा एल्गोरिदम। उसके बाद पेंगुइन एल्गोरिदम आया, हमिंग बर्ड आया, पिजन आया, और ये चलते जा रहा है। उन एल्गोरिदम में थोड़ा थोड़ा चेंज वो करते जा रहे हैं। अभी गूगल पूरे क्वालिटी और रिलेवेंट कंटेंट पे काम करता है। अगर आपके वेबसाइट में बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा, आपके वेबसाइट में रिलेटिव कंटेंट रहेगा, तो ही आपकी वेबसाइट हाई रैंक ले लेती है गूगल में। और ये कोडिंग कहां पे किया है? इन एल्गोरिदम में किया है। जो एल्गोरिदम हम लोग ने अभी देखे, पांडा एल्गोरिदम, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पिजन, इन सब में ऐसा कोडिंग करके रखा है कि जो क्वालिटी और रिलेवेंट कंटेंट अगर आपके वेबसाइट में रहेगा तो ही उस वेबसाइट को वो हाई रैंक ले लेता है। वो वेबसाइट आपको पहले पेज पे टॉप रैंक में लानी होती है इन वेबसाइट, इन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके और यूज करके। ओके, तो ये जो और डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, क्या होता है, कैसे हम लोग रिलेटिव कंटेंट बना सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, और ये बना के हम लोग अपनी वेबसाइट टॉप रैंक में कैसे लाते हैं। अब याद ये एक ध्यान में रखिएगा, जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हो तो वो वेबसाइट आप गूगल में सर्च करने के बाद आपको दिखाई नहीं देगी। वो आपकी वेबसाइट दिखाई देगी 10th, 11th, 12th, 20th पेज पे। और जैसे ही आपके वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप शुरू करते हो, वैसे वो वेबसाइट आपको 10th पेज से लेके 9th पेज, 9 से लेके 8, 8 से लेके 7, और उसके बाद जैसे ही आप एसईओ ऑप्टिमाइज करते जाते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने वेबसाइट का करते जाते हो, वैसे वो वेबसाइट क्राउल होके आपको फर्स्ट पेज पे दिखाई देती है। ओके, तो जैसे क्राउल यानी एक छोटा बच्चा जैसे रांगते हुए चलता है, वैसे ये वेबसाइट जो 20th पेज पे रहेगी वो क्राउल करके आपको फर्स्ट पेज पे दिखाई देती है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बंद करते हो तो आपकी वेबसाइट फिर हाई रैंक से निचले रैंक पे आती जाती है। ओके, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम ऑनगोइंग प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये एसईओ आप स्टॉप करते हो आपकी वेबसाइट नीचे जाएगी, जैसे आप एसईओ ऑन करते हो आपकी वेबसाइट अप हो जाएगी और आपकी वेबसाइट। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं।
और जानना है हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका डेफिनेशन क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स कौन से है, कौन कौन से टेक्निक्स हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं, ये सब हम लोग को स्टडी करना है, लेकिन अगली वीडियो में। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा और बेल बटन पे क्लिक करिएगा कि मैं जो जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हर टाइम आता रहेगा।